In the last class, we have studied about directive principles of state policy. Now, this is classified into three classifications. One is your the classical, the Purana classification है. One is what is the classification we have done? We have done socialist directive principles, Gandhian or Western liberal and what is the other name? Liberal and philosophical principles there. So there are three types and we have classified कौन से article कौन से classification में आ रहे. Now we know that first we have to write the constitutional provision. आपको DPSP constitution में किधर है? Constitutional reference देना है आपको. किधर है DPSP constitution में? Part 4. Part 4 is the address of the DPSP, Directive Principles of State Policy. Now article number 36. What is article number 36? In this part, unless the context otherwise requires, the state has the same meaning as part 3. Has the same meaning as part 3. Now, please open your article number 36. In this part, unless the context otherwise requires, the state has the same meaning as in part 3. तो आप लिख लीजिए उधर आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 36 कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ स्टेट. अब क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कौन से आर्टिकल में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है. आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 36 और किधर किधर आता मैं आपको बता दूँ. अभी अपन जितना पढ़े आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है. ठीक है. और इससे पहले जो फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से स्टार्ट हो रहे? फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग स्टार्टिंग फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स 12 to 35. So article number 12 talks about the states. Now open your article number 12. Please open your article number 12. Open your article number 12. What is article number 12 says? Please read. In this part, हमने क्या highlighter with you? Highlighter रख लीजिए. You have to get the constitution copy. Please take the highlighter. So article number 12 पढ़िए. The state. क्या दिया हुआ है heading? The state. Article number 12. Now we will learn the articles. We will learn the keywords. ठीक है. Please read article number. Article number 12. Please read. The state includes the government. The state. देखिए article number 12. The state. Keyword है. The state includes. Government and the Parliament of India. सुनो देखिए स्लो. The government and Parliament of India. Parliament of India. The government and Parliament of India. ये हो गया. फिर उसके बाद में क्या होता है और आप फिर से पढ़िए. The government and the state legislatures of. All local and other authorities. नहीं एक मिस करे आप. The एक लाइन मिस करे उसमें. The government and the legislature. The government and the legislature. The government and legislature of the states. Of the states. मान तेलंगाना, आंध्रा. Of the states. And all local. And all local or other authorities within the territory of India. Other authorities within the territory of India. Within the territory of India. माने इंडिया की जमीन पे. Territory of. Or under the control of government of India. Or under the control of government of India. ठीक है.
So what do you mean by this? This article means a lot. The state माने controlling authority. India is a sovereign state. India is a secular state. India is a socialist state. India is a democratic state. India is a republic state. माने state है क्या? State क्या है? It is a authority. It's a authority. अब वो authority को कोई exercise करते, कोई एक body बनाते आप, तो उसमें कौन कौन आते हैं अथॉरिटी में? आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36 बता रहा हूँ। अब आर्टिकल 12 में डिफाइन करे हुआ है व्हाट इज स्टेट। द स्टेट इज द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट माने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट अगेन दिया पे एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट माने द स्टेट में जो गवर्नमेंट है, जैसे टीआरएस गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेम रहती, पार्टियां बदलते रहते, गवर्नमेंट विल बी सेम। एंड ये स्टेट लेवल पे हो गया। और क्या है? ऑल लोकल। अपने पास गवर्नमेंट कितने लेवल्स पे है? देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट, वन इज योर स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अपने पास 3 टियर है। पावर क्या है? डेवोल्यूशन ऑफ पावर। ये क्या है? पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनिसिपैलिटीज। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ये क्या है? वी हैव 3 लेवल्स ऑफ सिस्टम। इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्री विच हैव 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। एक सेंट्रल लेवल, एक स्टेट लेवल, एक पंचायती राज। इज नोन एज डेवोल्यूशन। ये क्या है? डेवोल्यूशन ऑफ पावर है इसमें। डेवोल्यूशन ऑफ पावर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये थर्ड टियर कब आया अपने को? 1991, 1992, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब वो नॉर्मल पंचायती राज कब आया अपने को इंडिया में? वी वर ए 2 टियर गवर्नमेंट। एक सेंट्रल लेवल था, एक स्टेट लेवल था। थर्ड लेवल अपने पास क्या कब आया? बाई 92nd अमेंडमेंट। और इन द ईयर 1992 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? 92 में कौन था प्राइम मिनिस्टर? कौन था प्राइम मिनिस्टर? 1993 मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह became in 2003, 2004 में बने मनमोहन सिंह। 2004। Who? पीछे तो नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। He was the prime minister during that time. Who was the president? नहीं, वो वाइस प्रेसिडेंट। अपन अपने टाइम का बोल रहे हैं भाई, पीछे जाओ 30 साल। गो बैक। आमिर अंसारी वाइस प्रेसिडेंट। So ये होमवर्क है, आपको मालूम करो। The day on which president gave approval for this amendment is celebrated as पंचायती राज दिवस। पंचायती राज डे। वो टाइम पे नरसिम्हा राव was the PM and who is the president and the day on which amendments got approved, जिस दिन प्रेसिडेंट साइन कर दिए वो दिन को पंचायती राज बोलते हैं, पंचायती राज दिवस बोलते हैं। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर। तो व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज द अथॉरिटी है। अब स्टेट में आते कौन? आर्टिकल नंबर 12 बता रहा हूँ। द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द स्टेट। द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। उसके बाद में एंड ऑल लोकल, लोकल माने इसकी बात कर रहे हैं आप। और अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटी माने अपने पास इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज। व्हाट आर दोस? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज।
पहला अथॉरिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। पहली अथॉरिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल। सेकेंड क्या है? स्टैट्यूटरी। थर्ड क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। थर्ड क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। दिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। तो देयर आर, इंडिया में अपने को 3 टाइप ऑफ अथॉरिटीज है। व्हाट आर दोस? कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल माने जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, विच आर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका जिक्र मेंशन है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब वो कौन से है? कैन यू गिव एग्जांपल्स? चलिए पहले डेफिनेशन देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज माने जो आपको वो बॉडी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज माने जो एक पार्लियामेंट इन लोगों ने क्रिएट करे, बाद में जो एग्जिस्टेंस में आया, पार्लियामेंट एक लॉ पास करी, उसकी वजह से अगर वो एग्जिस्टेंस में आया, लॉ पास करने की वजह से, तो यूनिवर्सिटी लॉ पास करती, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। और ऐसे बॉडीज जो ना कॉन्स्टिट्यूशन से आया ना ही स्टैट्यूटरी से आया, बस एक कैबिनेट रेजोल्यूशन से आया, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। मोस्ट कॉमन ये क्या है? व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज? प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टैट्यूटरी माने व्हाट इज स्टैट्यूटरी? बाय एक्ट ऑफ लॉ, बाय एक्ट ऑफ लॉ, बाय एक्ट ऑफ, जैसा लिखिए, बाय एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, बाय एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जो आप संसद में, असेंबली में कानून पास करके जो चीज़ को आप एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। व्हाट आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल? जो बाय एक्ट ऑफ, बाय कैबिनेट रेजोल्यूशन, बाय कैबिनेट रेजोल्यूशन से जो बना, बाय कैबिनेट रेजोल्यूशन से जो। तो अपने पास कितने अथॉरिटीज है? 3। व्हाट आर दोस? कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। स्टैट्यूटरी बॉडी किसको बोलते हैं? जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो आर्टिकल है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जो स्टैट्यूटरी बॉडीज माने बाय एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जो पास करके एग्जिस्टेंस में लाया, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन माने बाय कैबिनेट रेजोल्यूशन, माने प्राइम मिनिस्टर रहेगा, प्राइम मिनिस्टर विद हिज कैबिनेट एक पेपर पे लिखते हैं, भाई टुडे फ्रॉम दिस ए ऑर्गेनाइजेशन है विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे है, जो अथॉरिटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पॉन्सिबल है, उन लोगों को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। जो अथॉरिटीज लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल है, जवाबदेही किसके साथ है? जवाबदेही किसके साथ है? अगर जो भी अथॉरिटीज की जवाबदेही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन को जवाब देना है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज। जिसकी जवाबदेही पार्लियामेंट को देना है या लेजिस्लेचर को देना है, असेंबली को देना है, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। और जिसकी जवाबदेही प्राइम मिनिस्टर को है, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट को है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट फेमस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। अब इसको कैंसिल करके क्या लाए? नीति आयोग। ये कैंसिल करे, नीति आयोग आ गया। नीति आयोग, ये क्या हो गया? नीति आयोग हो गया। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। एट प्रेजेंट दो इंस्टीट्यूशन जो मोस्ट ज़्यादा पावरफुल है इंडिया में, एक है नीति आयोग, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हर काम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही हो रहा है आजकल।
पहले क्या होता था, बहुत कम रहती थी। अब जब भी मेजॉरिटी, जब एक आदमी से जो गवर्नमेंट बन जाती पूरा, तो उससे क्या हो जाता, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बहुत पावरफुल हो जाता। तो अब एग्जाम्पल देता हूँ उन्हें, विच ऑफ द बॉडीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, विच आर द बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, विच आर द बॉडीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो फेमसली याद रखो, ये एक्स्ट्रा कॉन क्या रहता है, कैबिनेट रेजोल्यूशन है, विच आर रेस्पॉन्सिबल ओनली टू द प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन था, हटा दिया उसको, नीति आयोग अब आ गया और पीएमओ आ गया। तो ये क्या है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनमें फेमस एग्जांपल्स है। आपका होमवर्क क्या है, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरी। मैं आपको 5-6 दे देता हूँ, बट यू हैव टू मेक बाय योर ओन लिस्ट। अब फॉर एग्जांपल, मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, which are mentioned in the constitution. President is a constitutional authority. और Election. the most latest क्या है, कौन सा अथॉरिटी बना, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल मोस्ट क्या बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 289 कैपिटल ए निकालिए, 279 कैपिटल ए में रखा। Please check if my memory is right. 279 capital A GST council है, GST council. 279 capital A is the GST council. 154. जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अमेंडमेंट करके डाले उसमें, भाई 101st अमेंडमेंट आया, 279 कैपिटल A, 279 कैपिटल ए, पेज नंबर 155, 155, Goods and Service Tax Council. Goods and Service Tax Council, that is GST Council। ठीक है, अदर अथॉरिटीज, GST काउंसिल। उसके बाद में जिससे अपनी डेमोक्रेसी बेस्ड है, कौन सा और है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जब डेमोक्रेसी चलती। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है, 324. इलेक्शन कमीशन 324, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324। और Page 1. फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन इज 280, फाइनेंस कमीशन इज 280, आर्टिकल नंबर 280। और तो कौन सा है जी ना, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, 51. प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट का आर्टिकल क्या है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, 61. वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल क्या है, प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल क्या है, प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल नहीं दिया डायरेक्टली उन्हें, बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगा। ओपन आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 75 निकालिए, आर्टिकल नंबर 75, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बोल के लिखे हुआ है। There shall be a council. आर्टिकल नंबर 74, सॉरी 74. आर्टिकल नंबर 74 क्या बता रहा, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, प्लीज मेक श्योर यू आर हाईलाइटिंग दैट। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल नंबर 74। कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का जिक्र है। ये क्या है, COM विद PM, आर्टिकल नंबर 74. 74। VP का 63. 63, प्रेसिडेंट का 51. 52, 51, 52, पार्लियामेंट 79. 79, गवर्नर, गवर्नर
151 निकालो। गवर्नर, प्रेसिडेंट एक कम है, वाइस प्रेसिडेंट एक कम है, 52 का प्रेसिडेंट है, एक कम करो 151। देखिए वही है 151, 153 है, 151 है, 153। So please remember governor is 153. So जो भी मेंशन है सुप्रीम कोर्ट इज 1 to 3 और 1 to 4। सुप्रीम कोर्ट इज 1 to 4, 124 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल निकालिए। Yes, sir. 124। हाई कोर्ट 214। हाई कोर्ट का क्या करो 214। सुप्रीम कोर्ट अगर 124 है तो हाई कोर्ट क्या है 214। 1 to 2 को चेंज कर दो, याद रखो, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, जो भी आर्टिकल मेंशन है। और यूपीएससी, तो प्लीज रिमेंबर देर आर जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिक्रूटिंग एजेंसीज इन इंडिया। वन इज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सेकेंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये दो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, याद रखिए, ये दो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। यूपीएससी का आर्टिकल क्या है, यूपीएससी और एसपीएससी, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। बट प्लीज रिमेंबर एक क्या रहता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो अगर स्टेट बना तो स्टेट क्या करता, अब जैसा तेलंगाना आंध्रा हुआ था, बाइफरकेट हुआ था, तो रिक्रूटमेंट तो करना है तो कॉमन रिक्रूटमेंट करता, 2 स्टेट्स मिला के, तो उसको बोलते हैं जेपीएससी। जेपीएससी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इधर आप कंफ्यूजन होते, आपको 4 ऑप्शन दे देता, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडीज which came into existence by statutory, by action of legislature, by parliament or assembly। तो आपको जेपीएससी क्या है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता, लेकिन यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मिल जाता, ये याद रखिए, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग टर्म्स है हमेशा, दीज आर ऑल कंफ्यूजिंग टर्म्स। Joint Public Service Commission is a statutory body, whereas UPSC and SPSC are constitutional authorities. Please remember, ठीक है, make sure। और क्या है आर्टिकल पब्लिक सर्विस कमीशन निकालिए, सर्विसेज अंडर यूनियन बोल के रहता। पार्ट्स में देखिए, पार्ट्स पहले पार्ट्स में देखिए, सर्विसेज अंडर यूनियन, सर्विसेज अंडर यूनियन। 308, आर्टिकल नंबर 308 निकालिए, पेज नंबर 168। पेज नंबर 168, पेज नंबर 168। क्या है Recruitment and condition of services of a person serving union or state. ओके, उसके बाद यूनियन और स्टेट, पहले उन्हें जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। देन यू हैव टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। Dismissal and removal। ऑल इंडिया सर्विसेज 312, ठीक है। आर्टिकल नंबर 315, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स। 171 पेज नंबर 171, आर्टिकल नंबर 315। चैप्टर नंबर 2, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन 2 भी दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 315 में है। आर्टिकल नंबर 315, आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, पब्लिक सर्विसेज अंडर and for the states। एंड फॉर द स्टेट्स, एक ही उसमें दे दिया उन्होंने। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अलग बॉडी है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अलग बॉडी है, लेकिन वो उसकी अथॉरिटी कहाँ से आ रही,
कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल से आ रही है? 315। उसके बाद में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र नहीं है, प्लीज याद रखिए, ठीक है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो एक कानून पास करने में आया, ठीक है। कैन यू गिव एग्जांपल? समझ में आ गया? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, और आपको पे यू विल बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज करता हूँ ना, कमीशंस का नाम देता हूँ। SC/ST कमीशन क्या है? व्हाट इज SC/ST कमीशन? SC कमीशन है, ST कमीशन है, OBC कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, वुमेन कमीशन है। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कौन सी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कौन से आर्टिकल में है? ST कमीशन कौन से आर्टिकल में? देखिए OBC कमीशन कौन से आर्टिकल में है? कल मैं स्टेटस रखा था एक चीज, इफ यू हैव सीन द स्टेटस, उसमें अथॉरिटीज दिखाया था, अमेंडमेंट्स का एक बार रखा था, अमेंडमेंट्स इफ यू हैव सीन आर्टिकल नंबर 340 ये लिख लीजिए मेजर, और एक चीज लिख लीजिए इसमें, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो इसमें देखिए आर्टिकल नंबर Article number 76 is Attorney General of India. Article number 76. Article number 76 is Attorney General of India. Constitution authority से पूरे. Article number 76 is अटॉर्नी जनरल ऑफ Attorney General of India. Who is Attorney General of India? ये पूरों के नाम याद रखना हम लोगों को. Who is Election Commissioner? Chief Election Commissioner. आप लोगों का होमवर्क क्या है? ये पूरे बॉडीज है, इसके एक हेड्स है, तो हेडों के नाम याद रखना आपको, जीके में आता है आर्टिकल नंबर और उसके नेम्स, कौन कौन हेड है। GST काउंसिल इज द ग्रुप, इलेक्शन कमिश्नर इज हु इज द फाइनेंस कमिश्नर, और ये फाइनेंस कमिश्नर हर 5 साल को बनाते फाइनेंस कमिश्नर। गवर्नर कौन है आपने? तमिलसाई। आज आई थिंक आई हैव सेंड द करंट अफेयर्स फॉर टुडे, PDF भिजाया था, सुबह भिजा दिया था, देखे पढ़े आज करंट अफेयर्स के। उसमें लंच पिटीशन बोल के है, लंच पिटीशन डालने वाला है हाईकोर्ट वाले। गवर्नमेंट क्या करी, लंच पिटीशन हाईकोर्ट में जा रही, मेरे को आज मालूम हो लंच पिटीशन कुछ रहता मुझे। गवर्नमेंट को क्या बजट आने वाला है, हर साल बजट कौन से महीने में आता बजट? कब अनाउंस होता बजट? फरवरी 1 को होता। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट फरवरी 1 को बोलते बजट, वैसे ही 2-4 दिन के बाद अपनी स्टेट गवर्नमेंट दे देते बजट। अब तेलंगाना में क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग तेलंगाना, अब क्या है, हमेशा जो बजट रहता ना पहले गवर्नर को अप्रूवल के लिए जाता, अब गवर्नर से अप्रूवल नहीं आया। अब प्लान करे थे फरवरी 3 को बजट देंगे बोले, लेकिन अभी तक अप्रूवल ही नहीं आया। फिर उसके बाद काम आ रहे थे प्रिपरेशन के लिए, तो द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गो फॉर पिटीशन द हाई कोर्ट, लंच मोशन बुक। लंच मोशन क्या है कि भाई आप गवर्नर को जरा इंस्ट्रक्शन दियो कि भाई अप्रूव करके भिजाओ बोलो, आइदर यू अप्रूव इट आइदर यू रिजेक्ट इट। लेकिन अब उसके बैठ जाने से काम रुक जाना है, गवर्नेंस हो जाता। अब बजट रुक गया तो फिर क्या है, और प्रॉब्लम क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाता है। अगर बजट फेल हो गया तो गवर्नमेंट गिर जाती,
फिर इलेक्शंस कराना पड़ता। अब क्या हुआ, हम आप पूछ सकते हैं बजट नहीं दे तो क्या होता भाई, पहले तो पैसा होना चाहिए इसको। अगर बजट टाइम पे नहीं आया तो देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस? गवर्नमेंट गिर जाती, समझा, ये टाइम के बराबर आप काम कर लेना। सो देयर इज अ लंच मोशन विच इज फाइल्ड बाई, विच इज गोइंग टू बी फाइल्ड बाई तेलंगाना गवर्नमेंट इन हाई कोर्ट, seeking directions to the governor to clear budget files, to budget files जो करंट अफेयर्स में करेंगे अपन। तो बट सी फ्लैग होस्टिंग में मैंने सीएम कौन सा लिखे? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल लिखना है आपको। इसके बाद में Comptroller. कॉम्प्ट्रोलर, कॉम्प्ट्रोलर 148 आर्टिकल आर्टिकल नंबर 148, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 148 पेज नंबर 71 पे, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 148, ठीक है। और एक एडवोकेट जनरल 165, 165, एडवोकेट जनरल इज 165, 165, Page number 76. 165 पेज नंबर 76, 71 आर्टिकल नंबर 165, नेशनल कमीशन फॉर एससी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लगा इस भाई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल नंबर 341, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल नंबर 341, पेज नंबर 193, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, पेज नंबर 194, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, सॉरी, आर्टिकल नंबर 338, सॉरी, आर्टिकल नंबर 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल नंबर 338 कैपिटल ए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, आर्टिकल नंबर 338 कैपिटल बी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये आर्टिकल्स मेंशन है। तो आपको पूछ सकता विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? ऑप्शन ए नेशनल कमीशन फॉर एससीज, ऑप्शन बी नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ऑप्शन सी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, डी ऑल द अबव, ऑल द अबव। तो जो भी आर्टिकल्स मेंशन है यू आर टू ऑल क्लियर है पॉइंट। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज क्या है फिर? इधर कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी, दिस स्टैट्यूटरी बॉडीज, these are statutory bodies. So कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, किस किस का मेंशन है? नेशनल कमीशन फॉर एससी, आर्टिकल नंबर 338, एसटी 338 कैपिटल ए, ओबीसी 338 कैपिटल बी। क्लियर है पॉइंट? So these were the authorities. These were the authorities. So कौन से लिखे? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165 कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और नेशनल कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एससीज, एसटीज, ओबीसी। ये आर्टिकल्स हमेशा आपको आते, ये आपको याद रखना पड़ता। मैच ऑफ फॉलोइंग आ रहा है, द मैच ऑफ फॉलोइंग दे गिव अस मैच ऑफ फॉलोइंग। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या है? सो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76, 76, एडवोकेट जनरल 165, कैग
148. 148. SCs 338. 338. 338 Capital A. capital A. 338 Capital B. capital B. So these are constitutional bodies. सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो भी मेंशन है, और पंचायती राज 73rd Amendment. 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट में आया. प्लीज रिमेंबर. ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये. सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज. प्लीज राइट, एक लिस्ट में लिख लीजिए, ये याद रहना. ये